Hello everyone. Today we'll discuss about the obstacle drugs. What are the importance of the obstacle drugs? The drugs which are not recommended during the time of pregnancy, and the drugs those are allowed to a pregnant woman for the prevention of further complications. Okay. So drugs used in obstacle have a hug impact on the outcome of the both mother and the babies. Because if the mother are taking any kind of the drug, it's directly affect to the baby because the baby are feeded by the mother blood through the placenta. Okay. The drug used during the first trimester can produce a congenital malformation. Okay, because the majority of the development are completed in the first trimester. ठीक है, डेवलपमेंट मतलब जो स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होता है बॉडी का वो डेवलप हो जाता है. स्पेशल न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में ग्रोथ एंड फंक्शनल डेवलपमेंट्स होती हैं. जो इंटरनल फंक्शनल जो ऑर्गन्स हैं वो उनका फंक्शन होना या उनका ग्रो करना, बॉडी की सेल्स ग्रो कर रही, टिश्यू ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, वो सब डेवलपमेंट होता है आपका सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में. बट एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है बॉडी का, जो एक्चुअल ऑर्गन्स वगैरह है वो सारे डेवलप हो जाते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में. दैट्स व्हाई जनरली वी आर advised to the mother should not take any kind of the drug which are not prescribed by the doctor. Okay, because it's the greatest risk to form of the third trimester, especially to the especially in the first trimester, especially for the third to the 11th week of pregnancy. Okay, so during the second and third trimester, the drugs can affect only the growth and the functional development of the fetus. It may also having some toxic effect on the fetus. So there we will discuss about the drug used in pregnancy. आपको कौन सी ऐसी drugs हैं जो हम pregnancy के time पे use कर सकते हैं. Okay, there are the list of drug used in pregnancy. Those are the folic acid, the iron, calcium, antihypertensive drug, and the diuretic. This we will discuss about the pregnancy, not the labor. Okay, so generally you can say that you can see in a PSC and a CSC, or generally you are seeing that the mother who are pregnant, they are taking some drugs. Okay, those are the supplementary drugs like the folic acid, iron, calcium. Okay, the drug which are not restricted to the pregnant woman. This is actually necessary for the pregnant woman, just because the during the time of pregnancy जो body की demand है, जो blood demand है, nutrition demands है, वो क्या है, बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है? Because अभी तक क्या था, body में growth and development के जो मैं requirement थी वो fulfill हो रहा था mother के feed से. ठीक है, अब क्या है, mother की feed से mother की body भी develop हो रही है और fetus की body भी develop हो रही है. ठीक है, तो mother fetus दोनों की health को maintain करने के लिए, मतलब मदर भी डेवलप हो रहा है, फीटस भी डेवलप हो रहा है, दैट मीन रिक्वायरमेंट क्या है, बढ़ गया है. ठीक है, फीटल का रिक्वायरमेंट अलग एक्स्ट्रा है, मदर का एक्स्ट्रा है, तो देन जो बॉडी का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बढ़ गया हमारा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में पढ़ा है कि द फ्लो ऑफ द ब्लड विल इंक्रीज है, द हार्ट cardiac output is increased, BP is low, 10% BP is down हो जाता है, right? Then hemoglobin, generally mother are suffering from the anemia, the mother will not take any kind of supplementary food. Okay, then why? Because ऐसा नहीं कि mother will not take a proper nutrition. The thing is that the demand is increases. Okay, now in that the folic acid, iron, calcium, antihypertensive drug, and diuretic drugs. Okay, so generally, these drugs which are using during the time of pregnancy. So first of all, is the folic acid. What is the folic acid? Actually, is a supplementary drugs. Okay. So its preparation is the injection 10 ml, 5 mg per ml with 1.5% benzoyl alcohol. ठीक है, तो इंजेक्शन आता है 10 ml का, पर ml में कितना है, 5 mg है, तो 10 ml में 50 mg आपका विद 1.5% बेंजोइन अल्कोहल के साथ. okay, इसके अलावा टैबलेट 0.4 mg एंड 0.8 mg और 1 mg में प्रेजेंस होता है. ठीक है, सो डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन कि पेशेंट का जो फॉलिक एसिड स्टेटस है वो एक्सेस डिक्रीज है या फिर नॉर्मल से स्लाइट डिक्रीज है. ठीक है, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट को. ठीक है, अगर वो माइल्ड है तो हम टैबलेट फॉर्म में उसे देखते हैं. इवन अगर पेशेंट का फॉलिक एसिड नॉर्मल भी है तो भी जनरली वी आर एडवाइज टू द पेशेंट कि शी विल टेक मेडिसिन
टिल द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओके। और अगर उसका फॉलिक एसिड स्टेटस जो है वो डिक्रीज है, देन वी आर द सेकेंडरी प्रिवेंशन इज द इंजेक्शन। तो हम इंजेक्शन फॉर्म में पेशेंट को देते हैं, एज वी आर नो दैट की टैबलेट की जो बायोएबिलिटी होती है दैट इज द 50 to 60%, ठीक है। बाकी वो एक्सक्रीशन में चला जाता है बॉडी से, लेकिन जब भी कोई ड्रग्स हम आईवी फॉर्म में देते हैं या पैरेंटल फॉर्म में देते हैं तो उसकी बायोएबिलिटी 100% होती है, ठीक है। इसीलिए जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वो इंजेक्शन है। Then, what is the action of the folic acid? Actually, the folic acid can stimulate the normal erythropoiesis and the nucleoprotein synthesis, which are essential for the development of the heme. Okay. Next one is indication. So, when we will advise to the mother to take the folic acid, the first one is megaloblastic or the मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट द फीटल डैमेज, सो दैट की फीटल डैमेज ना हो, इसलिए कि मदर को मैग्लोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, देन वी हैव टू एडवाइज टू मदर टू टेक अ फॉलिक एसिड, ओके। प्रिवेंट द फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज बेबी का जो फर्स्ट टाइमेस्टर है उसमें क्या होता है, आपकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इफ द मदर हैविंग अ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और मदर प्रॉपर्ली फॉलिक एसिड नहीं लेता है, the baby having a chance of the hydrocephalus, spina bifida, and then the neurological defect. Okay. Now, what are the contraindication? In the contraindication is untreated vitamin 12 deficiency. The किसी को patient को या mother को untreated vitamin B12 deficiency, at that time we should not advise to the mother to take the folic acid because it will create a bad effect on the pernicious anemia. ठीक है। अगर मदर का कोई, अगर नॉर्मली कोई पर्सन है तो जनरली वी आर एडवाइज टू टेक अ पर्निशियस एनीमिया। अगर 12 B12 deficiency untreated vitamin B12 deficiency patient है, then this condition we should not allow to take folic acid, okay, that is getting a bad effects. Now the adverse effects. So what are the adverse effects of the folic acid? The first one is abdomen cramps, okay। एक्चुअली ये एब्डोमेन क्रैम्प्स भी तो स्टार्टिंग में होते हैं मदर्स को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी उसको कर लेती है, यूज टू जाती है, यूजफुल जाती है। देन डायरिया, ओके, रैशेस, इरिटेबिलिटी, नोजिया एंड ब्लॉटिंग। नोजिया एंड ब्लॉटिंग बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें स्मेल से प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उन्हें नॉजेटिक फीलिंग होती है, या फिर पेशेंट की जो ब्लॉटिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। Then the dose and the route generally which are available in the two ways. The first one is the orally, second is the subcutaneously daily जो हम देते हैं, ठीक है। तो 0.4 mg to 400 माइक्रोग्राम OD हम पेशेंट को देते हैं, 0.4 mg या फिर 400 माइक्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 0.4 mg to 0.8 mg IM, या फिर आप सबक्यूटेनियस दे सकते हो डेली बेसिस में पेशेंट को। और आपको डेली टिल 3 मंथ्स नहीं देना, बिकॉज फॉलिक एसिड जनरली वी एडवाइज द पेशेंट टू टेक अ फॉलिक एसिड टिल कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, but that not mean if the patient having a folic acid deficiency continues to providing the IM injection to till completion of the first trimester. No, when the folic acid level is normal by the IM injections, then afterward the patient should take a oral medicine. As like in a hospital, when the patient are admitted in the hospital, first of all we have to provide the treatment should be starting from the injections level. इंजेक्शन के बाद slowly so जब रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट का, तो हम पेशेंट को ओरल टैब में डाल देते हैं, ठीक है। बिकॉज ओरल टैबलेट कैन टेक अ मोर टाइम, okay, and rather than the IV injections, okay. Now what are the nursing considerations? So the first one is the patient with the health history of the fetal neural tube defect and pregnancy should increase the folic acid intake 1 month before and 3 months after the conception. So I told you that actually not in 1 month. Generally, we are advised to the marital women, new married couples, those are planning for the conceptions. They should take a 3 month prior to folic acid, iron, and calcium. Okay, then so that the deficiency of the folic acid, iron, calcium should be prevented priorly. Okay, then we advise to the mother in the first trimester they should take a folic acid. Okay, for the prevention of the neural tube defect. Now, the patient with the intestinal malabsorption may need the prenatal parenteral administration. Okay, so अगर patient को intestinal malabsorption से, ठीक है, तो अगर ऐसा patient है, malabsorption अगर उसको है, तो हम parenteral administration ही patient की करेंगे, ठीक है। Now the iron, ferrous sulfate, ferrous fumarate, okay.
Now in the preparation is the each 100 mg provide 33 mg of the elemental iron. ठीक है, टैबलेट 90 mg, 200 mg, 300 mg, 325 mg और 350 mg. तो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस में अवेलेबल होती है आपकी आयरन डोज. ठीक है, आयरन जनरली हम क्यों देते हैं, क्योंकि बॉडी में हीम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम मदर को आयरन देते हैं. ठीक है, तो जनरली आयरन जो होता है ईच 100 mg प्रोवाइड 33 mg ऑफ द एलिमेंटल आयरन. अगर 100 mg का टैबलेट है तो उसमें 33 mg एलिमेंटल आयरन प्रेजेंस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका 200 mg का टैबलेट है तो उसमें 66 ऑफ एलिमेंटल आयरन प्रेजेंस होगा. ठीक है, नाउ द व्हाट इज द एक्शन ऑफ द आयरन, टू प्रोवाइड द एलिमेंटल आयरन and essential component in the formation of the hemoglobin. तो hemoglobin के formation में जनरली क्या होता है, that is very important. Okay, now the indication, the iron deficiency as per the supplementary during pregnancy. Now the contraindication is primary hemolytic anemia, peptic ulcer disease, ulcerative colitis, repeated blood transfusion. Adverse effect is the metallic test. आपने देखा होगा mother generally they are avoiding to take the oral tab. अगर वो मल्टीपल विटामिन के फॉर्म में नहीं है तो जनरली वो अवॉइड करती है बिकॉज इनका स्मेल होता है. टेम्पररी स्टेन टीथ. ठीक है, टीथ में कहते हैं स्टेनिंग होती है, नॉजिया वोमिटिंग होती है, जीआई इरिटेशन होती है, ब्लैक स्टूल प्रेजेंस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ कलरिंग ऑफ द ड्रग्स. ओके, the doses and the route of the administration is 30 mg OD हम per day mother को देते हैं. So if we are providing a 100 mg to the mother, then 33 mg of the elemental iron is present there. ठीक है, injection 20 mg elemental iron ml in 500 ml and the 100 ml single dose while the iron sucrose. Okay, अगर injection है then 20 mg elemental iron per ml in 5 ml, यानी 1 ml में 20 mg है तो 100 तो आपके 5 ml में कितना हो गया, 100 mg हो गया. ठीक है, 10 ml सिंगल डोज वाइल, और 10 ml की क्या होती है, एक सिंगल डोज आती है आयरन सुक्रोज का. डोज 15 mg per kg body weight of max 1000 mg in the single injection IM और dilute in the 100 ml of the NS और IV. ठीक है, तो आपका 15 mg per kg body weight और mass के अकॉर्डिंग 100 mg इन सिंगल इंजेक्शन आता है, सॉरी 1000 mg का एक सिंगल इंजेक्शन आता है IM, जिसे हम IM या फिर डायलूटेड 100 ml ऑफ NS में IV स्टार्ट करते हैं. सी, हम इंजेक्शन फॉर्म तभी स्टार्ट करेंगे when the patient have a the severe degree not severe moderate degree of the anemia. ओके, मॉडरेट डिग्री यानी कि आपका जनरली अकॉर्डिंग टू WHO हम लेते हैं the other 3 degree mild, moderate and the severe. In a mild is 11 to 10. Okay, because less than 11 is the anemia condition, so 11 to 10, then moderate is 10 to 7, the severe is below 7. Okay, so in the generally in the severe condition we will transfuse the blood. Okay, in between 7 to 10 we'll start the IM or IV injections. Now the nursing consideration is advise patient to avoid the taking tablet with the milk or along with the antacids. Okay, so generally we have to advise the patient should not take a tablet with the milk, okay, or any kind of the antacids. The caution patient to crush the tablet. Caution patient should not substitute one iron salt for another because amount of elemental iron may vary. ठीक है, तो हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते कि वो किसी एक आयरन सप्लीमेंट्री के सॉल्ट को अनदर के साथ को सब्स्टिट्यूट करके ले सकती है. किसी का टेस्ट पसंद नहीं आया तो कोई और उसने एलिमेंटस ले लिया. दे शुड नो कि उसमें कितना एलिमेंटल आयरन प्रेजेंस है. The advise patient to report for the constipation or the change in the stool color. The stool color में changes आते हैं या उसे constipation. Generally mothers को starting में constipation का problems होता है. ठीक है, then slowly because क्या करता है water के excretion को बढ़ा देता है. ठीक है, body से excretion मतलब through the sweat gland. ठीक है, और अगर हम internally कहें तो ये water की reabsorption को बढ़ा देता है. ठीक है, जिससे क्या होता है एक्सक्रीशन में, यानी कि जब फीसेस आते हैं तो फीसेस में वाटर
एक्सक्रीट आउट नहीं होता, जिसकी वजह से हार्ड स्टोन की वजह से मदर को कॉन्स्टिपेशन होती है। कैल्शियम, कैल्शियम इज द कैल्शियम सिट्रेट, ईच टैबलेट कंटेन 211 mg और द 10.6 MEQ ऑफ द एलिमेंटल कैल्शियम। ठीक है, टैबलेट 250 mg प्रेजेंस होता है, 500 mg प्रेजेंस होती है। एक्शन इज द रिप्लेस कैल्शियम, मेंटेन द कैल्शियम लेवल। तो आप रिप्लेस कर सकते हो कैल्शियम को, या जनरली क्या करता है, रिप्लेस करता है कैल्शियम को या मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल को। Replace mother those having a deficiency of the calcium. Calcium deficiency actually is a differ from the D3 deficiency. एक तो calcium D3 आता है, एक calcium आता है, ठीक है। So this depend upon the deficiency. Okay. Now the indication is a supplement. Actually, as a supplement, we are advised to the mother after completion of the first trimester, the iron and folic acid per day you have to take. Okay. Now the contraindication is the cancer patient with the bone metastasis. अगर bone metastasis है कैंसर पेशेंट को तो हम नहीं देंगे। हाइपर कैल्कीमिया, क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्प्रेडिंग बढ़ेगा ज्यादा, ठीक है। हाइपर कैल्कीमिया अगर ऑलरेडी कैल्शियम क्या है, प्रेजेंस है। Hypophosphatemia. Now the renal calculi. So these are the contraindications. Renal calculi already क्या है, किडनी में क्या है, calculus presence है। Hypophosphatemia. Now the hyperkalemia and the cancer patient with the bone metastasis. These are the contraindication when we should not advise the patient to take a calcium. Adverse effect: headache, irritability, hyperkalemia, then calci taste, nausea and vomiting. The dose and the route of the administration is 500 mg OD orally. Nursing consultation is advised to the patient to take oral calcium 1 or 1.5 hours after the meal of GI upset occur. ठीक है, तो हम खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आपको ये लेना है, ठीक है, so that GI upset now. Then monitor the calcium level if the patient is having a mild renal impairment. अगर renal impairment है तो हम कैल्शियम लेकर चेक करेंगे, तभी जाके पेशेंट को एडवाइस करेंगे। क्यों? बिकॉज ना renal impairment है, because we will provide a medicine to the patient in a oral form. In a oral form, 40% of the drug excreted by the kidney from the body, okay, and the 60% viability presence in the blood only, okay. So अगर आप continuously already किसी पेशेंट को रीनल कैल्कुला या रीनल की कोई प्रॉब्लम है या किडनी फंक्शन नहीं कर रही प्रॉपर्ली, तो उससे क्या होगा, किडनी प्रॉपर्ली क्या होगी, जो फंक्शन कर रही थी अभी तक वो भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा, स्लोली स्लोली, क्योंकि एक्सक्रीशन क्या होता है, बायोएबिलिटी ज्यादा होती है किसकी, ओरल डोज की, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू रिपोर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ द एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, नॉसिया, अगर किसी कोई भी नॉसिया वॉमिटिंग होता है, एब्डोमेन पेन होता है, देन दे विल बी इन्फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन इज द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो ये तीन आपकी क्या थी, दी थ्रीज आर द योर supplementary drugs, okay. Folic acid, जनरली एक्शन इज द नॉर्मल इलेक्ट्रोपोइसिस के स्टिमुलेशन के लिए स्टिमुलेट करती है एंड न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। आयरन जनरली हम हीम के प्रोडक्शन के लिए देते हैं, बिकॉज द इंक्रीज डिमांड ऑफ द आयरन, फॉर द मेंशन ऑफ द इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन। कैल्शियम आल्सो वी हैव टू गिव फॉर द बोन डेवलपमेंट, स्पेशली द रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। Now we'll discuss about the antihypertensive drug. So in antihypertensive drugs, generally we are advised to the mother those are having a gestation diabetic mellitus and having a gestation hypertension or the essential hypertension. Gestation hypertension means the hypertension occurred during the time of pregnancy due to the physiological changes, okay. Or essential hypertension means already mother having a, before the conception, mother having a hypertension, continuously mother having a hypertension, having a history of the hypertension, कह सकते हो, and she will take it already take the medicine of the hypertension, okay. So in that there are some drug of choice which are actually allowed to the mother to take as an antihypertensive drugs, and the drugs which are not allowed to mother to take as an antihypertensive drugs, okay. So in that the first one is the alpha beta blocker, labetalol is allowed, okay. So these are the drug choice
टू गिव इन द ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सारी ड्रग्स क्या है, मदर को एडवाइस की जाती है, हम दे सकते हैं। जैसे लेबेटालोल आपने सुना होगा। ठीक है, ऑलरेडी आई विल टीच यू ऑल दीज ड्रग इन अ क्लास इन अ डीप वे। सो मैं आपको, दिस इज योर रिवीजन क्लास, इसलिए मैं आपको कर रही हूँ, सब कुछ क्लियर से बता रही हूँ। ठीक है, अल्फा बीटा ब्लॉकर, आई टोल्ड यू that all these things, the alpha beta blocker, calcium channel blocker, alpha blockers, vasodilators, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे रिसेप्टर्स हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है, जिनके थ्रू हमारी बॉडी में बीपी मेंटेन रहता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं बीपी इनहैंस होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 3 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो सप्रेस जाता है। तो जब एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो 2 यानी कि 8 डेका में आता है जब वो, ठीक है, तो 2 में कन्वर्ट होने के बाद आपके जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, मींस अल्फा बीटा है, कैल्शियम चैनल है, अल्फा है, ये सारी चीजें क्या होती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये सारी प्रोसेस कौन करता है, एंजियोटेंसिन 2 करता है। ठीक है, जब एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो हम क्या करते हैं इसके लिए, मदर को, क्योंकि अल्फा बीटा जो आपके रिसेप्टर हैं उनकी वजह से क्या होता है, बीपी रेज होता है, यानी कि प्रेशर रेज होता है ब्लड का। कैल्शियम जो, क्योंकि कैल्शियम आयन क्या होता है, एक्सचेंज होता है कंडक्शन के टाइम पे, आपको पता होगा सोडियम क्या करता है, एंटर होता है, देन आपका पोटेशियम एंटर होता है एक कंडक्शन के टाइम पे, देन कैल्शियम एंटर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर, क्योंकि ये भी आपका रिसेप्टर है, वैसो डायलेटेशन, बिकॉज ऑफ एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से बीपी रेज होता है, तो हमें क्या देना है, वैसो डायलेटर देना है। तो अल्फा बीटा ब्लॉकर हम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग इज लेबेटालोल हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम पेशेंट होते हैं जैसे नेफिडिपिन। ओके, अल्फा ब्लॉकर फॉर एग्जांपल मिथाइल डोपा। ओके, like the vasodilator, that is the hydralazine hydrochloride, ठीक है, vasodilator. So these are the drugs generally which are allowed during the time of pregnancy. Antihypertensive drugs, those are the contraindicated in pregnancy. The first one, these drugs should be avoided cause they may can cause the poor fetal renal function, malformation can cause the IGI, की कुछ drugs हैं जो actually hypertension हम mothers को देते हैं, ठीक है, but उससे क्या होता है, they are increasing a chance of fetal renal function, poor fetal renal function करता है, ठीक है, इसकी वजह से रीनल मालफॉर्मेशन हो सकती है, IUGR कॉज करता है, ठीक है, दैट्स व्हाई ये ड्रग्स हैं जो मदर को नहीं देता। जनरली अगर कोई मदर प्रेग्नेंट नहीं है और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हम उसे मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, ACE इनहिबिटर, नेक्स्ट वन इज मिनॉक्सिडिल। ठीक है, आपको पता होगा मिनॉक्सिडिल इज अ ड्रग जो वैसो कंस्ट्रिक्शंस करती है, ठीक है, वैस्कुलेशन को बढ़ाती है, और एलोप्सिया में भी ड्रग्स दी जाती है। सोडियम निटोप्रोसाइड, दिलजिट दिल diltiazem, okay, it's a diltiazem, atenolol and propanol, okay. So it is the atenolol, propanol, diltiazem, sodium nitoproside, minoxidil and ACE inhibitor. इसमें से आपको मैंने ACE inhibitor ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। Okay, so ACE inhibitor is a angiotensin converter एंजाइम होता है, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बिकॉज एंजियोटेंसिन 2 के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, सॉरी अल्फा बीटा रिसेप्टर के थ्रू, और आपके वैसो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, हार्ट मसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल क्या होता है, कंडक्शन बढ़ जाती है, कंडक्शन बढ़ने कैसे बढ़ती है, बिकॉज कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटर सेलुलर में फास्टली वर्क करता है, ठीक है, एंटर करता है। तो ये सब क्या करेंगे, हम ऐसी प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे जो पीपी को रेज कर रही है, ठीक है। सो एसी इनहिबिटर
we should not allow to the mother, or we should to take during time of pregnancy. Okay. Now under labetalol. Labetalol is a medicine the mother will be take during time of pregnancy. Generally, we advise to the mother. Okay. In that, the preparation is injection 5 mg per ml in 20 ml vial. ठीक है, 20 ml की vial में यानी 1 ml में कितना होता है आपका 5 mg होता है, तो 20 ml में कितना हो गया, ओके 100 mg हो गया, ठीक है। नाउ द टैबलेट 100 mg 200 mg और 300 mg, जो टैबलेट क्या होता है 100 mg 200 mg और 300 mg प्रेजेंस होती है लेबेटालॉल की डोसेस, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म में हम कब देते हैं मेडिसिन, व्हेन एक्चुअली वी आर, अगर पेशेंट को सडनली मींस उसका फॉल हो गया बीपी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इमीडिएटली इसको मैनेजमेंट करने के लिए हम इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, पैरेंटल देते हैं, अदरवाइज we advise to the mother to take a labetalol in an oral form. Okay. Action. What is the action? Reduce the peripheral vascular resistance as the result of the alpha and beta blocker. ठीक है, तो अल्फा और जो हमारा पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंसी है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसके थ्रू, एज अ रिजल्ट ऑफ द अल्फा बीटा ब्लॉकर। अल्फा बीटा जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें ब्लॉक करता है, क्योंकि अल्फा बीटा क्या करते हैं, वैस्कुलर रेसिस्टेंसी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, पैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब पैसेस कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये करता है अल्फा बीटा जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। इंडिकेशन हाइपरटेंशन एंड द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अगर हाइपरटेंसिव कोई इमरजेंसी है या हाइपरटेंशन ऑलरेडी है पेशेंट को, असेंशियल हाइपरटेंशन जो क्या है प्रेगनेंसी से पहले से प्रेजेंस है, ओके, जेस्टेशन हाइपरटेंशन जो ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में मदर को राइज हुआ है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग और इट्स कंपोनेंट, अगर कोई मदर इस हाइपो सेंसिटिव है या सेंसिटिविटी है उससे तो मदर को नहीं देंगे। कोई ब्रोंकियल अस्थमा की पेशेंट है तो हम नहीं देंगे। हिपैटिक और हार्ट फेलियर की पेशेंट है तो हम नहीं देंगे। प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन का पेशेंट है तो हम नहीं देंगे। सीवियर ब्रेडिकार्डिया है तो भी नहीं देंगे, ठीक है। Now the adverse effect is dizziness, fatigue, nausea, vomiting, headache, and vertigo. So these are the adverse effects of the labetalol. Okay. Doses and the route of administration है 50 mg और 100 mg tablet OD orally or according to the doctor prescription. This depend upon the severity कि कितना आपका बीपी enhance है, ठीक है, और कितना मदर कंट्रोल कर रही है। 20 mg per 20 ml injection IV bolus wait for 10 minutes, if no response then give 40 mg slow bolus, ठीक है। जनरली क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में हम 20 mg पर 20 ml, हर एक 20 ml में 20 mg प्रेजेंस है, यानी कि 1 ml में 1 mg प्रेजेंस है, उसको हम IV बोलस डोज देते हैं 10 मिनट्स के लिए। अगर पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, रिस्पॉन्स जैसे बीपी फॉल नहीं होता है, तो हम फिर 40 mg स्लो बोलस डोज देते हैं। This actually act for the emergency only. In daily basis में हम पेशेंट को oral form में देते हैं। Nursing consideration is advise the patient to remain in the supine position for 3 hours after the infusion. So 3 hours after infusion के बाद वो supine position में रहे, ठीक है। आपको पता होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को supine position में क्या होता है, हाइपोटेंशन होती है। So monitor the BP frequency, मदर का बीपी को frequency मॉनिटर करना है, ठीक है। इन डायबिटिक पेशेंट मॉनिटर ग्लूकोज लेवल क्लोजली, ग्लूकोज लेवल क्लोजली मॉनिटरिंग करनी है आपको। एडवाइस द पेशेंट दैट डिजीनेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय राइजिंग द स्लोली अवॉइडिंग द सडन पोजीशन चेंज, ओके। अगर उसको डिजीनेस हो रही है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Now the next one is nifedipine. So nifedipine is another drugs of the hypertension, antihypertensive drugs. Preparation is capsule form में presence होती है, tablet form में presence होती है। कैप्सूल में 10 mg, 20 mg, tablet form में 20 mg, 30 mg, 60 mg और 90 mg. The action is through to inhibit the calcium iron reflexes across the cardiac smooth muscle cells, decreasing the contractility and the oxygen demand, and also dilates the arteries and
एट्रियोल्स, ठीक है। तो ये करती है जनरली आर्टरी और एल्ट्रियोल्स को डायलेट करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपकी आर्टरीज है एट्रियोल्स अभी वो कंस्ट्रिक्ट हो रखी है तो फ्लो इंक्रीज है, ठीक है। अगर वो क्या हो जाएंगी, अगर डायलेट हो जाएंगी तो फ्लो ऑटोमेटिकली। सो द एक्शन इज जनरली जो क्या करती है, हमारे कैल्शियम आयन होता है, जनरली कैल्शियम आयन इफेक्ट करता है हमारे कार्डियक और स्मूथ मसल्स में, उसकी कॉन्ट्रैक्टिविटी को डिक्रीज करती है, जिसकी उसकी कॉन्ट्रैक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्टिविटी डिक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन का अगर डिक्रीज होता है, रिलैक्स हो जाती है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। आल्सो डायलेट था, और इसके अलावा ये आर्टरी आर्टरीज को डायलेट करती है, सिलेक्ट की जो आपकी ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, फॉलो जाएगा। The indication is hypertension, whether the essential hypertension, whether the gestational hypertension, the classic chronic stable angina pectoris. Now the contraindication is patient अगर heart failure है, hypotension patient है, severe GI narrowing patient है तो आप नहीं दोगे। Adverse effect is dizziness, syncope, heart failure, muscle cramp, peripheral edema. Doses and the route of administration is 5 to 20 mg orally. Nursing consideration is monitor BP, HR regularly. Advise patient to avoid taking this drug with the grapefruit juice. Okay, was the symptoms for heart failure? This is important. Advice patient if the chest pain worse immediately report to the doctor. ठीक है, तो आप क्या करोगे, BP मॉनिटरिंग करोगे, हार्ट रेट मॉनिटरिंग करोगे पेशेंट का। आप पेशेंट को कंटिन्यूसली आप बोलोगे कि वो अवॉइड करे taking any kind of मीन्स वो इस ड्रग के साथ ग्रेप्स को अवॉइड करे, ठीक है। इसके अलावा उसे हार्ट फेलियर के कोई सिम्टम्स आते हैं या पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करे, ठीक है। एंड देन शी विल इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। ओनली हम 5 to 20 mg जनरली पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वी हैव टू गिव टू द पेशेंट, ओके। देन next one is the methyl dopa. Methyl dopa is the preparations. Tablet is 250 mg, 500 mg. Injection 50 mg per ml. The action is inhibit the central vasomotor center, decreases sympathetic outflow to heart, kidney and peripheral vasculature, ठीक है। तो हार्ट किडनी में जो भी पेरिफेरल वैस्कुलेशन इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसको करता है, ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा जो सेंट्रल वैसोमोटर सेंटर होता है उसे डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो ऑफ द हार्ट, जो हार्ट पे जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसे भी डिक्रीज करता है, ठीक है। नाउ इंडिकेशन इज द सेम लाइक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में देते हैं हम इसे। कॉन्ट्राइंडिकेशन हेपेटिक डिजीज या लीवर सिरोसिस तो हम नहीं देंगे। लैक्टेशन मदर है तो हम नहीं देंगे। एडवाइस एडवर्स इफेक्ट इज अ डिक्रीज मेंटल एक्यूटी, sedation, headache or depression, bradycardia, hepatic necrosis, hepatitis. So these are the generally adverse effects of the patient. The doses and the route of the administration is 250 mg BD or the TDS, max 2 gram daily, treated by the BP. Nursing consultation is to monitor BP regularly, monitor patient, form test results, report for the एक्चुअली फॉर्म टेस्ट हम क्यों कराते हैं, मैंने आपको बताया था। फॉर्म टेस्ट हम करते हैं पेशेंट की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने के लिए। रिपोर्ट फॉर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट, टेल द पेशेंट टू चेक द वेट डेली एंड नोटिफाई इफ ही गेन 2 or more pound in a week, ठीक है। आपको वेट मॉनिटरिंग करना है आपकी। इसके अलावा इनवॉलेंट्री मूवमेंट अगर ऐसा होता है मदर को तो आप मॉनिटरिंग करोगे, फॉर्म टेस्ट या रिपोर्ट मॉनिटरिंग करोगे, क्योंकि रेगुलर मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है। The dose is 250 mg BD or the TDS, max 2 gram daily, treated by the BP. Now the hydrolyzing hydrochloride. So this is the injection. The preparation is in the injection form present, a tablet also both form they are presenting. Then in the injection 20 mg per ml in 1 ml vial, tablet is 10 mg, 25 mg, 50 mg and 100 mg. Action is the direct action peripheral vasodilation and the relaxes arteriole smooth muscles. तो ये करते हैं हमारे ये जो वैसो डायलेट करते हैं, वैसेस को डायलेट करते हैं, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली
जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज रहेगा। इसके अलावा रिलैक्स करता है एट्रियल स्मूथ मसल, जो हार्ट की जो स्मूथ मसल्स होते हैं एट्रियल स्मूथ मसल्स, उन्हें रिलैक्स करता है। इंडिकेशन इज द हाइपरटेंशन, सेम लाइक एसेंशियल हाइपरटेंशन और gestation diabetic, gestation hypertension, severe essential hypertension. Contraindication is coronary artery disease, rheumatic heart disease, stroke, severe renal impairment. Adverse effect is neutropenia, leukopenia, thrombocytopenia, orthostatic hypotension. The dosage and the route of administration is 0.2 mg tablet PD, and if necessary may increase to 50 mg PD. 5 mg diluted in 10 ml of NS and slow IV at the 15 to 20 minutes interval. Nursing consideration is the monitor patient BP, pulse rate, body weight frequently, monitoring the patient muscles and joints and the fever of throat pain, and as well as advise the patient to take a drug after food to increase the absorption. ठीक है, so आप जनरली आप पेशेंट को स्पेशली एडवाइस करोगे she will take a tablet after the food, after the any kind of meal. ओके, जब भी आप कोई पेशेंट को कोई भी ड्रग्स देते हो, जैसे आप हाइपरटेंसिव की ड्रग्स दे रहे हो या डायबिटिक मेलिटस की ड्रग्स दे रहे हो, यू शुड बी मॉनिटर। ओके, आपको पल्स, आपको वाइटल साइंस कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने। इसके अलावा जॉइंट पेन, मसल क्रैम्पिंग, फीवर या थ्रॉट पेन है तो आप चेक करोगे। नेक्स्ट वन इज द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स भी हम क्या करते हैं, बीपी को रिड्यूस करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज भी करते हैं। आईसीपी को मेंटेन करने के हम डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। डायूरेटिक्स क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उससे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है किडनी के थ्रू, ठीक है, एक्सक्रीशन को एक्चुअली बढ़ा देता है, ठीक है। डायूरेटिक आर यूज्ड द फॉलोइंग कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पीआईएच इज अ मैसिव एडिमा, जैसे पेशेंट को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है, फिर उससे मैसिव एडिमा, हेपेटिक एडिमा है। एक्लैम्पशिया विद द पल्मोनरी एडिमा, अगर पेशेंट को एक्लैम्पशिया है, एक्लैम्पशिया इज अ कंडीशन when the patient BP raise 160 by 100 mHg, okay, with convulsions. Then severe anemia in pregnancy with the heart failure, पेशेंट को एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है और वो हार्ट फेलियर है, तो हम डायूरेटिक देंगे सो दैट कि जो हमारा आईसीपी है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है, कार्डियक ओवरलोडिंग ना हो। Then the prior to blood transfusion in the severe anemia, अगर severe anemia है तो blood transfusion से पहले हम क्या करते हैं, डायूरेटिक देते हैं सो दैट कि बॉडी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो आउट हो सके, as an adjustant to certain antihypertensive drugs, ठीक है। और हम जनरली आता है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ, एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हमसे दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हैं, बिकॉज ये करता है बॉडी में जो रिटेंशन होता है फ्लूइड का, उसकी वजह से जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है वो डिक्रीज करता है फ्लो, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट को बीपी स्लो हो जाता है, ठीक है। फ्रोसामाइड इज अ डायूरेटिक, जनरली हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन इज इंजेक्शन 10 mg पर ml, यानी हर एक ml में क्या होता है 10 mg प्रेजेंस होती है। टैबलेट इसमें 20 mg का, 40 mg का, 80 mg, 500 mg का टैबलेट प्रेजेंस होता है। अगर आपको इमीडिएटली कोई एक्शन लेना बच्चों, तो ऑलवेज वी हैव टू टेक इन IM और पेरेंटल फॉर, अदरवाइज हम ओरल फॉर्म में देते हैं पेशेंट को, ठीक है। Then action is to inhibit the sodium and chloride reabsorption at the proximal and the distal tubular and the loop of the Henle. तो क्या करता है जनरली, जो सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, वाटर अगर रिटेन होता है तो ऑटोमेटिकली या तो सोडियम और क्लोराइड क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है बॉडी में, तो उसको इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन को, वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड भी आपका बॉडी से स्ट्रेट आउट हो जाता है, स्पेशली जो डिस्टल ट्यूबल्स होते हैं, लूप ऑफ हैनल है, ठीक है। इंडिकेशन इज द एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में रहते हैं, एडिमा में रहते हैं, हाइपरटेंशन केसेस हम देते हैं। Contraindication is anemia, hepatic cirrhosis, allergic to sulfonamide. Now the adverse effect is maternal weakness, fatigue, muscle cramp, hypokalemia. Fetal is the may occur due to the decreased bleeding of the fetal, compromise, hyponatremia. Dose is the route of administration. 40 mg tablet हम generally मदर को एडवाइस करते हैं कि वो डेली फॉलोइंग द ब्रेकफास्ट। Then in acute condition, drug is administered parenterally in doses 40 to 140 mg daily. Okay, now the nursing consideration is to monitor the weight, BP, pulse, routine of the long-term uses,
Monitor the patient iron charting. Was the sign for the hypokalemia, such as the muscle weakness, cramp. Monitor the uric acid if the patient having a gout. Advise the patient to take drug in morning after food. Advise the patient to avoid the direct sunlight to prevent the photosensitivity reactions. Okay. Now, then next slide, next lecture, we will discuss about the tocolytic agent. Okay. Thank you so much.